آج ہم ایک ایسی دنیا کی بات کرنے والے ہیں جہاں لالچ اور خوف ہر کونے میں چھپے بیٹھے ہیں، یعنی سٹاک مارکیٹ۔ اور یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں لوگ یا تو راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتے ہیں یا پھر سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں۔ جی، لیکن آج ہم ان دونوں انتہاؤں سے ہٹ کر اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ایک منظم راستہ تلاش کیا جائے، ہے نا؟ بالکل۔ اور اس راستے کی پہلی منزل پیسہ کمانا نہیں ہے، پہلی منزل ہے اپنے محنت سے کمائے ہوئے سرمایے کو ڈوبنے سے بچانا۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علم اور حکمت عملی کے ساتھ اس میدان میں کیسے قدم رکھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب زیادہ تر لوگ تو اس فیلڈ میں اس لیے آتے ہیں، وہ دوستوں کے منافع بخش اسکرین شاٹس دیکھتے ہیں، جی، سوشل میڈیا پر لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیاں میں دیکھتے ہیں، اور بس بغیر کسی تیاری کے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ پہلی سیڑھی ہے جہاں سے پھسلنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسے ایک گیٹ رچ کوئک اسکیم سمجھا جاتا ہے جو جوئے سے مختلف نہیں۔ صحیح۔ لیکن اصل وجہ جس کے لیے ہر شخص کو سرمایہ کاری کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ بہت گہری اور خاموش ہے۔ خاموش؟ آپ کے پیسے کو ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو نظر نہیں آتا، جسے ہم کہتے ہیں مہنگائی، انفلیشن۔ پیسے کی دیمک۔ بالکل، جیسے دیمک لکڑی کو اندر ہی اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتی ہے اور باہر سے سب ٹھیک لگتا ہے۔ اسی طرح مہنگائی آپ کی بچت کی قوت خرید کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں، 3 سال پہلے جائیداد کی قیمت کیا تھی؟ سونا کہاں تھا؟ یا روزمرہ کی سبزیاں بھی۔ جی، تو اگر آپ کا پیسہ صرف بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے تو وہ اصل میں اپنی قدر کھو رہا ہے۔ اسی لیے مالی تعلیم کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا، پیسہ کمانا، جو ہم سب کرتے ہیں۔ دوسرا، پیسے کو سنبھالنا یعنی مینج کرنا۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، پیسے کو بڑھانا یعنی گرو کرنا۔ سٹاک مارکیٹ اسی تیسرے ستون کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے، اگر اسے سمجھ کر استعمال کیا جائے۔ بالکل، اگر اسے سمجھ کر استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ذہن میں بیٹھ گئی کہ صرف کھڑے رہنے کا مطلب بھی پیچھے جانا ہے۔ اب جب ہم حرکت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہمارے سامنے ایک چوراہا ہے۔ ایک راستہ ہے سرمایہ کار یعنی انویسٹر کا، جی، اور دوسرا تیز رفتار راستہ ٹریڈر کا۔ یہ تو 2 بالکل مختلف فلسفے لگتے ہیں۔ ایک ٹریڈر کی دلچسپی اس میں نہیں ہوتی کہ کمپنی کیا بناتی ہے یا اس کا مستقبل کیا ہے۔ تو پھر اس کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اس کی پوری توجہ اسکرین پر موجود قیمت کے گراف پر ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ ٹیکنیکل انالیسس کا استعمال کرتا ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس یعنی وہ چارٹ پیٹرنز، کینڈل سٹکس، یہ سب؟ جی، مارکیٹ کی نفسیات کی تصویری شکل۔ مارکیٹ کی نفسیات؟ یہ بڑا دلچسپ خیال ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس اس خیال پر مبنی ہے کہ قیمتوں کی حرکت میں انسانی رویے کے نمونے چھپے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپورٹ ایک ایسی نفسیاتی سطح ہے جہاں بہت سے خریدار سمجھتے ہیں کہ قیمت اب سستی ہو گئی ہے، اور وہ خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو قیمت مزید گرنے سے رک جاتی ہے، ایک فرش کی طرح۔ بالکل۔ اور ریزسٹنس اس کے برعکس ہے، ایک چھت جہاں بیچنے والے حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی مشہور پاکستانی سیمنٹ کمپنی کی مثال لیں تو ایک سرمایہ کار اس کی نئی فیکٹریوں کے منصوبوں کو دیکھے گا، جی، اور تعمیراتی صنعت کے مستقبل کو، جبکہ ایک ٹریڈر شاید صرف یہ دیکھ رہا ہوگا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں اس کے شیئر کی قیمت کا گراف کیا شکل بنا رہا ہے۔ اسے شاید یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ کمپنی سیمنٹ بناتی ہے یا کپڑا۔ اچھا، تو ٹریڈنگ کی بھی مختلف اقسام ہیں؟ جی، جیسے انٹرا ڈے جس میں ایک ہی دن میں خرید و فروخت ہوتی ہے، یا سوئنگ ٹریڈنگ جو کچھ دن یا ہفتوں پر محیط ہوتی ہے۔ تو ذرائع میں جو 90% انٹراڈے ٹریڈرز کے نقصان کی بات کی گئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ بالکل، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بغیر علم اور منظم راستے کے اس میدان میں کودنا کتنا خطرناک ہے۔ یہ 90% کا ہندسہ واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ جی، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ان تمام راستوں میں چاہے وہ سرمایہ کاری کا ہو یا ٹریڈنگ کا، حقیقت پسندانہ ہدف کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کیا ہم سالانہ 5% منافع کی بات کر رہے ہیں یا 50% کی؟ آپ کو صرف 72 کو اپنے متوقع سالانہ منافع کی شرح سے تقسیم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سالانہ 12% منافع کما رہے ہیں تو 72 کو 12 سے تقسیم کریں، 6 آتا ہے۔ تو آپ کا پیسہ 6 سال میں دگنا ہو جائے گا۔ یہ تو اپنے مالی اہداف کو جانچنے کا ایک فوری طریقہ ہے۔
तो इस हिसाब से कम हदफ क्या होना चाहिए कम से कम हदफ सालाना 12% मुनाफा होना चाहिए। ताकि पैसा हर 6 साल में दुगना हो? जी ये महंगाई को शिकस्त देने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन एक ज्यादा पुरजोश लेकिन काबिल हुसूल हदफ 24% सालाना मुनाफा का है। ताकि पैसा सिर्फ 3 साल में दुगना हो सके। 24% सालाना, ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, तकरीबन नाकाबिल यकीन। लेकिन क्या ये हकीकत पसंदाना है? मुझे ऐसा लगता है कि 24% के हदफ का ताक़ुब एक नए सीखने वाले को सीधा तबाही की तरफ ले जा सकता है। आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक बहुत अहम एहतियात है कि ये कोई पहले साल का हदफ नहीं है। अच्छा, ये उस हुनर का हदफ है जो आप वक्त के साथ सीखते हैं। गैर हकीकी तवक्कुआत ही नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। तो फिर अपनी कारकर्दगी को जांचना कैसे चाहिए? साल ब साल नहीं, कम से कम 3 साल की औसत पर देखें। मार्केट हर साल एक जैसी नहीं रहती। कभी बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है और कभी मार्केट सुस्त होती है। तो असल चीज पहले साल में 24% कमाना नहीं, बल्कि वो हुनर सीखना है जो तवील मुद्दत में औसतन ये मुनाफा पैदा कर सके। बिल्कुल, और शुरू में कम सरमाए से शुरुआत करनी चाहिए। असल सरमाया आपका इल्म और हुनर है। पैसा तो वक्त के साथ बढ़ाया जा सकता है। पहले हुनर पर तवज्जो दें, मुनाफा खुद ब खुद आएगा। जी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी इस खेल के सबसे अहम उसूल हैं। लेकिन एक सवाल है जो सबके जहन में आता है। कि हजारों कंपनियों में से सही कंपनी चुनी कैसे जाए? बिल्कुल, क्या ये सिर्फ एक अंदाजे का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? अक्सर लोग बस यही देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है। और बस पैसा लगा देते? जी, और ये तो फिर सीधा सीधा जुआ हुआ ना? तो क्या कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। देखिए, जुआ खेलने और सोच समझकर सरमायाकारी करने में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क कैसे पैदा होता है? ये फर्क पैदा करता है एक तरीकाकार, जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। बुनियादी तज्जिया? जी, बुनियादी तज्जिया। आसान लफ्जों में इसका मतलब है कि किसी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले आप असल में उसके पूरे कारोबार का एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम? यूं समझ लें कि आप ये मानते हैं कि आप स्टॉक नहीं बल्कि उस कारोबार का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। कारोबार का एक हिस्सा खरीदना, ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज है। मतलब हम सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर वो जो कीमत ऊपर नीचे हो रही है उसे नहीं देख रहे। हरगिज नहीं, आप ये देख रहे हैं कि वो कंपनी क्या बनाती है, कैसे बेचती है, कितना मुनाफा कमाती है, उस पर कितना कर्ज है, और सबसे अहम कि मुस्तकबिल में उसके कामयाब होने के इम्कानात कितने हैं। बिल्कुल। ये टेक्निकल एनालिसिस से बिल्कुल उलट है। वहां लोग सिर्फ कीमत के चार्ट और पैटर्न देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की सेहत, उसकी हकीकी कद्र, उसे समझने की कोशिश करते हैं। हकीकी कद्र? हम अक्सर कीमत और कद्र को एक ही चीज समझ लेते हैं। जी हाँ, मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफे ने कहा था, कीमत वो है जो आप अदा करते हैं, कद्र वो है जो आपको मिलती है। इसका असल मतलब क्या है? ये सरमायाकारी की रूह है। इसको एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। जी बताएं। फर्ज करें आप बाल कटवाने जाते हैं। एक जगह शायद 50 रुपए में आपको बेहतरीन सर्विस मिल जाए, और दूसरी जगह हो सकता है आप 500 रुपए देकर भी खुश ना हो। बिल्कुल। तो कीमत अलग चीज है और उसके बदले में जो आपको कदर मिल रही है, जो तसल्ली मिल रही है, वो बिल्कुल अलग है। सही। या जैसे अगर कोई फ्लैट खरीदना हो, 2 फ्लैट एक ही कीमत के हो सकते हैं, जी। लेकिन एक शहर के बीच में हो, दूसरा बहुत दूर, एक की तामीर अच्छी हो, दूसरे की नाकस, तो जाहिर है एक की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अंदरूनी कदर दूसरे से कहीं ज्यादा होगी, भले ही उनकी कीमत एक जैसी हो। जी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फंडामेंटल एनालिसिस का सारा मकसद यही है, ऐसी कंपनियां तलाश करना जिनकी अंदरूनी कदर उनकी मौजूदा स्टॉक कीमत से ज्यादा हो। यानी एक बेहतरीन कारोबार जो किसी वजह से डिस्काउंट पर मिल रहा हो। बिल्कुल, आपको एक अच्छी चीज सस्ते दामों मिल रही है। ठीक है, तो हमें कारोबार की असल कदर तलाश करनी है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। हाँ, लगता तो है। कुछ औजार हैं, कुछ पैमाने हैं जो इस मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। इन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल रेशोज। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में ये बहुत आसान है। उनमें सबसे मशहूर है पीई रेशो। पी रेशो, ये तो बहुत सुना है।
प्राइस टू अर्निंग्स। लेकिन आसान जबान में ये है क्या भला? बहुत ही आसान है। ये आपको बताता है कि आप किसी कंपनी की कमाई का 1 रुपया हासिल करने के लिए कितने रुपए अदा करने को तैयार हैं। अच्छा, मिसाल से समझाएं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 10 है, तो इसका मतलब है कि आप उसकी सालाना कमाई का 1 रुपया हासिल करने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। और अगर पीई 100 है? तो आप 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपए दे रहे हैं। ओह, तो इस हिसाब से तो जितना कम पीई हो उतना ही बेहतर हुआ ना? जी 10 रुपए देकर 1 रुपया कमाना 100 रुपए देकर 1 रुपया कमाने से तो कहीं बेहतर है। कम पीई का मतलब है कि स्टॉक सस्ता मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? एक ज्यादा पीई हमेशा बुरा नहीं होता। अच्छा, बाज़ोकात उसका मतलब ये होता है कि सरमायाकारों को यकीन है कि ये कंपनी मुस्तकबिल में बहुत तेजी से तरक्की करेगी और उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। तो वो मुस्तकबिल की इस तरक्की के लिए आज ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं? बिल्कुल, वो मुस्तकबिल की उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं। यानी मार्केट उस कंपनी के मुस्तकबिल पर एक बड़ा दांव लगा रही है, जैसे आजकल की नई टेक्नोलॉजी या एआई कंपनियां। जी बिल्कुल। उनका मुनाफा शायद अभी कम हो, लेकिन लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। और ये भी सुना है कि हर इंडस्ट्री का पीई अलग होता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। आप किसी सीमेंट कंपनी के 15 के पीई का मुवाजना किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के 60 के पीई से नहीं कर सकते। ये तो सेब का मुवाजना संतरे से करने जैसा हुआ। बिल्कुल। असल कमाल ये जानने में है कि कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री की औसत से सस्ती है या महंगी। और अगर किसी कंपनी का पीई मनफी हो तो अक्सर नई कंपनियों का होता है। उसका सीधा मतलब है कि वो फिलहाल कुछ कमाई ही नहीं रही, वो नुकसान में है। ठीक है, तो पीई हमें आमदनी के लिहाज से कीमत बताता है। लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी अभी ज्यादा कमा नहीं रही, लेकिन उसके पास बहुत कीमती असासे हैं, जैसे फैक्ट्रियां, जमीन या बहुत सारी बिल्डिंग्स? बेहतरीन सवाल। क्या कोई तरीका है कि हम कंपनी की कीमत का मुवाजना उसके असासों से कर सकें? जी, और इसी के लिए एक दूसरा रेशो है जिसे कहते हैं पीबी, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू? बुक वैल्यू को आप कंपनी की नेट वर्थ समझ लें। यानी अगर कंपनी आज अपने तमाम असासे बेच दे और अपनी तमाम जिम्मेदारियां और कर्जे अदा कर दे, तो जो रकम बाकी बचे भी, वो उसकी बुक वैल्यू है। जी हाँ, पीबी रेशो मार्केट की कीमत का इसी बुक वैल्यू से मुवाजना करता है। तो यहाँ भी मंतिक वही है कि कम पीबी बेहतर है। बिल्कुल। मतलब हम कंपनी के असासों के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम अदा नहीं कर रहे हैं। जी, आमतौर पर 1 या 2 के करीब पीबी को बहुत अच्छा समझा जाता है। इसका मतलब है कि आप जो कीमत अदा कर रहे हैं वो कंपनी की हकीकी असासा कदर के बहुत करीब है। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन देता है। आप कह सकती हैं। समझ गया। एक और चीज जो अक्सर परेशान करती है वो है कर्ज, डेट। उसके लिए भी एक रेशो है, डेट टू इक्विटी। जी लेकिन एक मिनट, हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि कर्ज एक लानत है। तो जिस कंपनी पर ज्यादा कर्ज हो वो तो बुरी सरमायाकारी हुई ना? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, अगर आप ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर्ज लें तो वो यकीनन बुरा है। जी। लेकिन कारोबार की दुनिया में कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये तरक्की के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए समझदार कंपनियां तरक्की के लिए कर्ज का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर असल सवाल क्या है? असल सवाल ये नहीं कि क्या कंपनी पर कर्ज है, बल्कि ये है कि क्या कंपनी आसानी से अपना कर्ज और उसका सूद चुका सकती है। अच्छा। अगर कंपनी की आमदनी उसके कर्ज की किस्तों से कहीं ज्यादा है तो फिर फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये रेशोज पीई, पीबी और डेट, ये तो कंपनी की माली सेहत के एक एक पहलू की तस्वीर दिखाते हैं। जी, जैसे एक एक्सरे हो। लेकिन अगर हमें पूरी मेडिकल रिपोर्ट देखनी हो तो वक्त के साथ साथ कंपनी की सेहत कैसी रही है, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, जिसे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ये तो अकाउंटेंट्स वाले नाम लग रहे हैं। घबराएं नहीं, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 3 चीजों में रुझान यानी ट्रेंड देखना है। सिर्फ 3 चीजें? जी, पिछले 5 साल का डेटा निकालें और देखें। पहली और सबसे वाज़ेह चीज, सेल्स और मुनाफा। ठीक है। क्या कंपनी की फरोख्त और इसका मुनाफा साल बा साल मुसलसल बढ़ रहा है? कभी कभार एक आध साल बुरा हो सकता है, लेकिन मजमूई रुझान ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये एक बढ़ते हुए सेहतमंद कारोबार की सबसे बड़ी निशानी है। बिल्कुल। ठीक है, फरोख्त और मुनाफा बढ़ रहा है,
दूसरा क्या देखें? दूसरा असासे और वाजिबात, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या वक्त के साथ कंपनी के असासे यानी उसकी मिल्कियत वाली चीजें बढ़ रही हैं? और इसकी वाजिबात यानी कर्जे वगैरह? जी, क्या वो कम हो रहे हैं या कम से कम काबू में हैं? एक अच्छी कंपनी मुसलसल अपने असासे बढ़ाती है और अपनी जिम्मेदारियां काबू में रखती है। और तीसरी सबसे अहम चीज, कैश फ्लो कैश। यानी कंपनी के अंदर आने और बाहर जाने वाले नगद पैसों का बहाव। देखिए, मुनाफा कागज पर दिखाया जा सकता है, लेकिन कैश हकीकी होता है। बात तो सही है। क्या कंपनी के पास अपने रोजमर्रा के अखराजात चलाने और नए मंसूबों में सरमायाकारी करने के लिए काफी नकद रकम आ रही है? कैश किसी भी कारोबार के लिए खून की तरह है। अगर ये बहाव रुक जाए तो बड़े से बड़ा कारोबार भी बैठ सकता है। तो खुलासा ये है कि अगर किसी कंपनी की सेल्स, मुनाफा, असासे और कैश ये सब ऊपर जा रहे हैं और उसकी वाजिबात नीचे आ रही हैं या मुस्तकिम है, तो ये एक बहुत ही मजबूत इशारा है कि हम एक अच्छे कारोबार को देख रहे हैं। बिल्कुल। ये कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को पढ़ने का एक आसान लेकिन बहुत मौसर तरीका है। जी हाँ। ठीक है, तो हमने नंबर्स देख लिए, रेशोस चेक कर लिए और पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी देख लिया। सब कुछ बेहतरीन है। क्या अब हम आंखें बंद करके पैसा लगा दें? नहीं, या इस 90% होमवर्क के बाद भी कुछ बाकी है? यही वो नुक्ता है जो एक अच्छे और एक बेहतरीन सरमायाकार में फर्क करता है। ये आखिरी 10%, 10%? जिसे हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी मयारी अवामिल कहते हैं, ये शायद सबसे ज्यादा अहम है। अब हम आदादो शुमार से बाहर निकलकर अक्ल और समझ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? सबसे पहले खुद कारोबार को समझें। वो क्या करते हैं और क्या इस चीज का कोई मुस्तकबिल है? कोई मिसाल? एक मिसाल लेते हैं। एक कंपनी है जो कोयले से बिजली बनाती है और दूसरी कंपनी शमसी तवानाई यानी सोलर पैनल बनाती है। ठीक है। हो सकता है आज कोयले वाली कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे हों, लेकिन क्या आज से 20 साल बाद भी दुनिया कोयले पर इन्हिसार कर रही होगी? शायद नहीं। जबकि शमसी तवानाई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है। आपको ये सोचना है कि आप किस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी ये देखना कि कंपनी वक्त के साथ चल रही है या वक्त से पीछे रह गई है। बिल्कुल। दूसरी चीज है इजारादारी, या जिसे वॉरेन बफे मोट कहते हैं। किले के गिर्द खंदक। जी, क्या कंपनी के पास कोई ऐसी खास बात है जो इसे अपने मुद्दे मुकाबिल से बचाती है? जैसे पाकिस्तान रेलवे को ले लें। अच्छा। मुल्क भर में पटरियों का जो नेटवर्क उसके पास है, कोई नई कंपनी आकर रातों रात वो नहीं बना सकती। ये उसकी इजारादारी है, उसका मोट है। और ऐसी कंपनियों को कीमतों पर ज्यादा कंट्रोल हासिल होता है। बिल्कुल। और अगर इजारादारी ना हो तो फिर आपको मुकाबले का जायजा लेना होगा। क्या आपकी मुंतखब करदा कंपनी एक बड़े तालाब में एक छोटी मछली है जहां एक बहुत बड़ी शार्क भी मौजूद है? मतलब क्या उसके मुद्दे मुकाबिल इतने बड़े और ताकतवर हैं कि वो उसे आसानी से मार्केट से बाहर कर सकते हैं? जी, एक मजबूत मुसाबकती पोजीशन तवील मुद्दती कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक और ज्यादा बारीक और शायद मुतनाज़ा बात भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाज़ माहौल में सियासी हमायत भी बहुत अहमियत रखती है। जी हाँ, ये एक हकीकत है कि कुछ कारोबारी माहौल में सियासी रवाबित या हुकूमती पॉलिसियों का मुआफिक होना किसी कंपनी की तरक्की पर नुमाया तौर पर असरअंदाज हो सकता है। तो ये भी देखना चाहिए। ये उस पूरे मंजरनामे को समझने का हिस्सा है जिसमें कोई कारोबार काम कर रहा है। ये सियासी हिमायत वाली बात बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या इसमें एक खतरा भी नहीं? कैसा खतरा? अगर हुकूमत बदल जाए तो क्या ऐसी कंपनी का सारा फायदा खत्म नहीं हो जाता? ये तो एक दोधारी तलवार लगती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। यही वजह है कि जो कंपनियां सिर्फ सियासी हिमायत पर इन्हिसार करती हैं, वो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो फिर एक हकीकी तौर पर मजबूत कंपनी वो है जिसका कारोबार इतना मजबूत हो कि वो किसी भी सियासी तब्दीली का मुकाबला कर सके। ये एक रिस्क फैक्टर है जिसे जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या है? हमने एक कारोबार की अंदरूनी कदर को समझने से बात शुरू की, जी, फिर पीई और पीबी जैसे रेशोज को देखा, बैलेंस शीट के रुझानात को परखा, और आखिर में कारोबार के मुस्तकबिल और उसकी मुसाबकती पोजीशन का जायजा लिया। बुनियादी पैगाम ये लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कोई रॉकेट साइंस नहीं जो सिर्फ माहिरीन के लिए हो। बिल्कुल दुरुस्त। ये सोचने का एक फ्रेमवर्क है, एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार, एक चेकलिस्ट है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप एक मजबूत कारोबार में सरमायाकारी कर रहे हैं। और एक मुनासिब कीमत पर। एक मुनासिब कीमत पर।
اور اچھی خبر یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر ایسی کئی ویب سائٹس اور ٹولز موجود ہیں جہاں یہ ساری معلومات اور ریشوز آپ کو ایک کلک پر مل جاتے ہیں۔ تو یہ علم اب سب کی پہنچ میں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔